السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں پاکستانی سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور آج پورے ملک میں گہما گہمی اور ریلیاں، جلوس، جلسے کا ماحول ہے اور پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور جتنی بھی تمام نواز شریف کی جو PMLN ہے ان کی پارٹی، وہ سارے تمام لوگ جو ہے جلسے ریلیوں کو نکال رہے ہیں اور گلی کوچوں میں بھی بہت زیادہ لوگوں کی ریلیاں نکل رہی ہیں۔ لوگوں کے اندر بڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، لیکن ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کرانے کے ہر حربوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل میں نے خود بذات خود یہ چیزوں کو آبزرو کیا۔ میں گھر سے باہر نکلی، گاڑیوں میں گھوما، پورے شہر کو دیکھا، کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی پینا فلیکس اور جو ہے ان کے بینرز کو نہیں لگایا ہوا تھا اور ان کو بار بار اتارا جا رہا تھا۔ باقی جتنی بھی تمام پارٹیاں تھیں، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو آزاد امیدوار ہیں، ان کے پینا فلیکس آویزاں تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ واقعی میں ناانصافی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی جو ووٹر سپورٹرز ہیں، ان کو عمران خان نے آج کے دن پرامن، جتنے بھی ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو باہر نکلنے کی، پرامن ریلیوں کی جو ہدایت کی ہیں۔ پاکستان کی عوام سے بھی، ان کی بہنوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں، کیونکہ عمران خان کو جو ہے کینگرو ٹرائل کے ذریعے یہ لوگ سزائے موت یا خدا نخواستہ 14 سال قید کی جو ہے سزا سنانے والے ہیں۔ کیونکہ جو کل جو ہے واقعہ جو پیش آیا ڈیالہ جیل کے اندر، جس طرح سے پاکستان کے جو عدالت ہے اس نے اتنا جو ہے جو قانون کی دھجیاں اڑائیں اور جو ناانصافی کا جو بیج بویا، وہ حد سے زیادہ ناقابل جو ہے بیان ہے اور اس کو جو ہے کسی بھی طرح سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مانی چیئرمین ہیں اور شاہ محمود قریشی جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کو اپنا وکیل تک کرنے نہیں دیا گیا۔ ان کو زبردستی جو ہے گورنمنٹ نے اپنا وکیل ان کے اوپر تھوپا اور وہ جو ہے اپنے گواہوں سے، اپنے ہی جو ہے وکیل سے ان کی طرف سے جرا زبردستی کروائی جانے کی کوشش کی گئی اور کروائی گئی، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تلخ کلامی پیش آئی اور جو ہے جج کسی بھی موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ اور جج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں اور وزیر خارجہ ہیں، ان کو اپنی طرف سے اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی بھی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی اور یہ بالکل بھی قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ یہ جو سراسر بالکل بھی ناقابل قبول ہے۔ اس وجہ سے پاکستانی عوام کو باہر نکلنا چاہیے اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو باہر کے جو ہے پاکستان کی میڈیا کے اوپر یہ باتوں کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات، یہ 9 مئی کے جھوٹے کیسز عمران خان کے اوپر بنا کے ان کو سزا دینے کی کوشش الگ سے کی جا رہی ہے اور پارٹی کو بین کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے فیصل واڈا نے اپنے جتنے بھی پچھلے بیانات میں انہوں نے باتیں بتائی ہیں اور اسی طرح سے پیٹرن چل رہا ہے، لیکن ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو ظلم کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنا عذاب جو ہے نازل کرتا ہے۔ تو ہمیں جب انصاف ملنا بند ہو جائے تو بہت زیادہ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آنے کی نوید سنائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جھٹکے دیتا ہے عذابوں کے اور پھر انسان کو اس کو جو ہے اس سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو میں ایسا پاکستانی، ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، پھر بعد میں ہم پارٹیاں ہیں اور ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے اوپر برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کی احترام کریں اور ایک دوسرے سے دست و گریبان نہیں ہوں۔ اور اسی طرح سے جو حمزہ شہباز شریف ہیں، ان کو کل ریلی میں جوتا مارا گیا، جو کہ بالکل بھی قابل قبول بات نہیں ہے۔ ہم یہ یہودیوں اور یہ جو
अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोगों के सरों पे अंडे भी मारे गए हैं। और इस किस्म के आप जो है पाकिस्तानियों इस किस्म के अमल से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। हम जो है सियासत में तशद्दुद पसंदी को हरगिज़ भी जो है किसी भी चीज़ की हिमायत नहीं करनी चाहिए। ना ज़बान में तशद्दुद वाले अल्फाज इस्तेमाल करें, ना किसी की दिल आज़ारी वाले और ऐसे अमल से गुरेज़ा करें। बेशक अगर आपके साथ जुल्म हो रहा हो, आप उस जुल्म के हाथ को रोकें, लेकिन आपको ये हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी जो है तकलीफ़ में और ईज़ा रज़ानी के लिए आपके हाथ उठें या आपकी ज़बान से किसी को ईज़ा दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। सरकारी मुलाजमीन को नैब हरासानी से बचाने के लिए नया मेकैनिज़म मुतारिफ़ कराया जाए, क्योंकि आर्मी चीफ़ ने जो सरकारी मुलाजमीन है उनसे ये वादा किया था कि वो इस किस्म का उनको हिरासानी का नैब की तरफ से जो शिकायत मौसूल हो रही थी पिछले सालों में भी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो इसका अज़ाला ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह से अब जो स्क्रूटनी कमेटी की जो है शिकायत पहले इब्तदाई तहक़ीक़ात करेगी। कमेटी अपनी सिफारिशात या नताइज मिजाज हुक्काम की इजाज़त के बाद नैब से शेयर करेगी। पहले स्क्रूटनी होगी, उसके बाद शिकायत का अज़ाब देखा जाएगा कि इसको नैब के हवाले करना है कि नहीं करना। डायरेक्ट किसी भी जो सरकारी मुलाजिम है उसको डायरेक्ट कोई भी नैब वाला अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाएगा। तो इसी तरह से कल नवाज शरीफ ने और साद रफ़ीक वहाँ पे मौजूद थे और इरफान सिद्दीकी, सागदार, इन सब ने अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर का जो है वो कर दिया इफ्तिताह, और जिसकी मैंने तफसीलात भी आपको बताई थी। तो इस तरह से उनकी जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें नवाज शरीफ ने अपने भोलेपन में सीधे हाथ उल्टे हाथ रखने के बजाय सीधा हाथ रख दिया, जो कि एक जो है काबिल फ़हम बात नहीं है। आपको नज़र आ रहा है कि पहले अंगूठा आने वाला है, तो आप पहले सीधा हाथ रख के आपने एक जगह साई के अपना मौका दिया लोगों को बात करने का कि आप किस तरह से पाकिस्तान की आवाम के अंदर टेक्नोलॉजी का चीज़ों को पैदा करेंगे। पाकिस्तान के 2 मज़दूर जो है कत्ल कर दिए गए ईरान के अंदर। पाकिस्तानी कौंसल जनरल का जय वक़ूफ़ और अस्पताल का दौरा अलमनाक वाक़े पर गहरा सदमा। सफ़रखाना सोगवार ख़ानदान की मदद करेगा सफ़ीर मुदस्सिर टीपू। सरामा में दहशत गर्दों ने शनाख्त करके मज़दूरों को निशाना बनाया। मक़तूलीन और वर्कशॉप में काम करते थे। तेहरान तहक़ीक़ात में ताउन करे, पाकिस्तान ने कहा है। तो अब इस तरह से पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पे ईरान के अंदर भी मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। पाक ईरान सरहद को अदम इस्तेहकाम से महफूज बनाने की ज़रूरत है। ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएँगे। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी सफ़ीर से इस्नाद पेश करते हुए गुफ्तगू की। साइफ़र केस इमरान खान के जज से तख्त कलामी। शाह महमूद फ़ाइल दीवार पर फेंक मारी। सरकारी जो अभी मैंने आपको तफसीलात बताई हैं उसका एक लबाब ये भी है, जो कि आजकल रिपोर्ट हो रहा है कि इमरान खान और जज के अंदर दलखलाम की वजूहात भी यही थी जो मैंने आपको बताया कि कैंगरू कोर्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान को उनके जो वकील हैं उन्होंने बाहर आके बहुत ज़्यादा जो है तफसीलात बताई हैं कि उन लोगों वो उनके वकील मौजूद हैं, फिर भी उनको जरा करने के बजाय सरकारी वकील ही इमरान खान के वकील के तौर पे और ख़ुद ही जज बन रहे हैं, ख़ुद ही वकील बन रहे हैं, ख़ुद ही मुद्दई बन रहे हैं। तो ये कोई इंसाफ के पूरे तकाज़ों को नहीं पूरा किया जा रहा पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात के सरबराह को बिल्कुल भी। और जो है अब जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर जितने यूट्यूबर्स हैं और जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर FIA ने साइफर केस के अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से पेश हो चुके थे हमारे खिलाफ। उनको हमारी तरफ से इमरान खान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी की तरफ से वकील किया गया। अब जैसे वकील किया गया, जो शाह साहब की तरफ से जिस शख्स को वकील किया गया उसने शाह साहब के साथ बदतमीजी की, धक्के मारे शाह साहब को। और बड़ी तलखी हुई इस बात की कि एक ऐसा वकील शाह महमूद कुरैशी को दिया जो उन्हीं को आगे से उनसे बदतमीजी कर रहा और बुरे तरीके से पेश कर रहा है। जो दूसरा वकील पेश किया गया, अब वो जो प्रोसिक्यूटर है ज़मान अब्बासी साहब है उनके वो जूनियर है और वो उनके साथ पेश होते हैं। आप ये चीज़ें इस तरफ बड़ा वाज़ेह इशारा कर रही हैं
खान एक बात कहते हैं, ये जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन, आज उसका बिल्कुल अमली नमूना हमने देखा। हम वहाँ अदालत के अंदर मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी के अंदर मुख्य जेरा करवाई जा रही है। हम कह रहे हैं कि ये हमारा हक है, पहले हमने जो दरख्वास्तें दी हैं उनको आप डिसाइड करें, फिर हम जेरा शुरू करते हैं। हमारे एक वकील साहब लाहौर थे, हमने कहा वो लाहौर से भी आ जाएंगे, उनके एक ऑपरेशन हुआ था, हमने कहा वो दांत का ऑपरेशन हुआ, वो आप 5 घंटे का हमें टाइम में वो आ जाते हैं। एक और शख्स मसाब के वकील जो है वो लाहौर के करीब थे, हमने कहा वो भी आ जाएंगे। लेकिन इतनी तेज़ी से अदालती वक्त 3:30 बजे के बाद मीडिया को बाहर निकाल के कैंगरू अदालत की तरह मैकेनिकल अंदाज से शहादत तलब बंद की। नजम सेठी ने कहा था कि 5 फरवरी से पहले कराना इन्होंने तय कर दिया है। और लगता है कि जिस तरह दिलावर हमायूं गोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को सलाह दी थी, इसी तरह साइफर जज जो है ये भी उसी डगर पे चल चुके हैं। दरख्वास्तें दी, हमने कुल 9 दरख्वास्तें दी, जिसकी वजह से हमने 9 की 9 दरख्वास्तें, जिनमें इमरान खान साहब की तरफ से 2 दरख्वास्तें दी गई कि चॉइस ऑफ लॉयर की, वो अपने मर्जी के वकील से वो जिरा करवाना चाहते हैं और वो अपने मर्जी के वकील से इस केस को प्लीड करवाना चाहते हैं। और जो मुकदमा मुकर्रर किए गए उनके ऊपर हमने अदम एतमाद किया। जो जजेस साइफर कोर्ट की उनकी तरफ से अदम एतमाद को रिजेक्ट किया गया बार बार। हमने कहा टाइम रखें, हम तो जिरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी मैं खुद जिरा करूँगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, पुलिस से जिरा करवाएगी। और जिरा जब की जा रही थी तो मैं आपको एक बड़ी हैरानी की बात बताऊँ, हम खुद भी वहाँ बड़े हैरान हो रहे थे, फैमिली भी सारे हम बैठे, शहाद साहब की फैमिली थी, शाह साहब की फैमिली। काजी फाइजीज़ा की शिकायत के ऊपर तलब कर लिया है। काजी साहब जो है बहुत पहले जब वो जज नहीं थे वो दूसरों लोगों के पास जाकर और इजहार राय के ऊपर बड़ी लेक्चरबाजियाँ करते थे, लेकिन अब वो ख़ुद जब थे इस मनसब पे फाइज हुए हैं तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उनका जो कंडक्ट है वो आवाम की समझ से बिल्कुल बाहर है। तो खैर काजी साहब अभी कितने दिनों तक के लिए और जज हैं, वो तो फिर जब वो वहाँ से हटेंगे तो फिर बात करेंगे उनके जो उन्होंने कारकर्दगी रही है या नहीं रही उनकी। राहत फ़तेह अली ख़ान का मुलाजिम पर तशद्दुद कहते रहे कि है मेरी बोतल, और जो राहत फ़तेह अली ख़ान है उनके बारे में ये भी खबरें आ रही हैं और हम इसके बारे में इतनी तफसीलात में जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग जो है इस किस्म की हरकतों और सकनात में मशगूल होते हैं जो कि इस्लाम के मनाफी हैं और फिर आके झूठी अपनी तौजीहात देते हैं और इस किस्म की उनकी जो है चीज़ें बाहर आ रही हैं जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने हयाताबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्हें लोगों को माइल कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को जो है वो वोट दिया जाए और मुस्लिम लीग नून और इमरान खान दोनों एक ही रुख के वो हैं, सिक्के के 2 रुख हैं। और 9 मई समेत दीगर केसेस में इमरान खान समेत दीगर को सज़ाओं से पार्टी पर पाबंदी का भी इम्कान है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बात बताई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुड्डे लाइन मज़ीद लगाने के लिए ये भी इन्होंने चाल चलने की वो शुरू कर दी है और दोबारा से इनकी 9 मई की तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर CCTV फुटेज में देखा जाए उसको आप इतना वो करें, जो आपने सेफ सिटी पूरा बनाया हुआ था अगर आप उसमें देख लें तो आप लोगों को निशानदेही हो जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी आवाम को उस के अंदर मुलविस किया जा रहा है। उनके ऊपर जो है 3 MPO और दहशतगर्दी, जलाओ घिराओ और इतने किस्म के जो है इल्ज़ामात लगा के उनको जेलों में भरा जा रहा है और बिल्कुल भी ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। फ़लस्तीनियों की वकालत जनूबी अफ्रीकी शहरियों का कौमी फ़ख्र बन गई। जनूबी अफ्रीका 57 मुल्कों पर बाजी ले गया। बेशक जो जनूबी अफ्रीका है वो इतनी मजबूत मुल्क नहीं है, फिर भी उसने फ़लस्तीनियों के हक़ में ये करारदाद लेकर आया। वो किसी अमेरिका से नहीं पैसे लेता और वो उनके मुल्क में भी उन्होंने उनके लिए खड़ा हो गया और वो सबसे ज़्यादा आला मकाम पर उसका अब जो है लोग उसको जान रहे हैं, उसको वाह वाह हो रही है क्योंकि उसने फ़लस्तीनियों के लिए ये करारदाद लाया
اور اس کو اس میں پذیرائی بھی ملی۔ اقوام عالم میں منڈیلا جیسا مقام حاصل صدر معفو ساکی جماعت کو انتخابات میں کامیابی کی امید۔ تو یہ ان کے ملک کا یہ وہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیا۔ اور جو ہے اسی طرح سے سرمایہ کاروں کا اعتماد، فوراً امدادی گیس پر انحصار میں کمی، زر مبادلہ بچت کے لیے اصلاحات پلان تیار۔ تو اسی طرح سے باقی گیس ایکسپلوژن اینڈ پروڈکشن پالیسی 2012 اور ریٹائرمنٹ گیس اور ٹائیڈ گیس ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن پالیسی 2011 میں ترامیم کی تجویز دی گئی ہے۔ پلان منظوری کے لیے نگراں وزیر اعظم کے زیر صدارت انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں مفاد کونسل کے اجلاس میں کل پیش رفت کی جائے گی۔ اسرائیل نے جتنے مظالم توڑ دیے ہیں اس کے بعد طوفان آنا ہی تھا۔ ترجمان حماس مفت بجلی، مفت پیٹرول اور بڑی بڑی گاڑیوں سمیت شاہانہ امارات ختم کریں گے، فرید پراچا نے یہ کہا ہے۔ تو اس طرح سے جو معاملات ہیں آج پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جلسے، جلوس، ریلیاں نکال رہے ہیں۔ آپ بے شک تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب چیزیں کریں۔ آپ لوگ اپنی پارٹیوں کو بھرپور سپورٹ کے لیے باہر نکلیں، لیکن آپ ایک دوسرے کی دشمنیوں میں اور ایک دوسرے کو تانا زنی اور ایذا رسانی میں ایک دوسرے کی پارٹیاں مت بنیں۔ آپ لوگ ایک پہلے مسلمان اور انسان ہیں اور پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم پارٹیاں ہیں۔ بے شک آپ لوگوں کی الگ الگ پارٹیاں ہوں، لیکن آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان اور ایذا رسانی کے جملے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو اجتناب کریں۔ عوام پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور اس طرح سے میں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔